પણ ધોન છે. જય જીનેન્દ્ર, જય જીનેન્દ્ર. તમે જ્યાં સુધી જય જીનેન્દ્ર જોરથી નથી બોલવાના ત્યાં સુધી કીર્તિભાઈ આગળ નથી પડવાના. એને એનર્જી મળે છે. એકવાર બોલો બધા મળીને જય જીનેન્દ્ર. યસ, अब आया ना मजा, राइट. શાસનપતિ શ્રવણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું શાસન જયવંતુ વર્તી રહ્યું છે. પૂર્વ ભારત ઉદ્ધારક પરમ પૂજ્ય જગ જૈન ગુરુદેવના આશીર્વાદ રહેતા હોય. અત્રે વિરાજિત પરમ પૂજ્ય શ્રવણ સંઘીય પરમ પૂજ્ય ડોક્ટર મેવાડ ગૌરવ પ્રવર્તિની ચંદાજી મહાસતીજી તથા અક્ષય જ્યોતિજી મહાસતીજીનું આદિ થાણા 8 નું ચાતુર્માસની પર્યુષણ પછી નો આ માહોલ. પૂજ્ય મહાસતીજી, આજે હું તમને કહીશ, તમારે કલકત્તાના મકાન કરવા જ પડશે. આ જો આ મેદની ચાતુર્માસ પર્યુષણ પછી અને અદ્ભુત, અકલ્પનીય, અવિસ્મરણીય, હયું ગદગદ થાય આટલા મેદનીની વચ્ચે જ્યારે જાપનું આયોજન હોય, નીરવ શાંતિ, એક પીઠ પડે તો પણ અવાજ આવે, નીરવ શાંતિ, એક આત્મિક શાંતિનો અનુભવ થાય. પૂજ્ય મહાસતીજી, આપનું ચાતુર્માસ તો અમને પ્રાપ્ત થયું, પણ દાદા અરિષ્ટ નેમી અને દાદા પાર્શ્વનાથ ભગવાનના જાપ, અને એ પણ 1.25 કરોડ મંત્રના જાપ. અદ્ભુત, અદ્ભુત, અદ્ભુત. કલકત્તા કામાણી જૈન ભવનના ઇતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરે લખાશે. આ ચાતુર્માસ દીપી ઉઠ્યું છે આપ સૌના સાથ અને સહકારથી. અત્રે બિરાજિત પૂજ્ય મણિમુનિજી મહારાજ સાહેબ તથા પરમ મહાસતીજીઓ, પૂજ્ય ગુરુદેવ નમ્ર મુનિજીના અનુયાયી પરમ મહાસતીજીઓ અત્રે પધારેલ છે. શ્રી સંઘ આપનું સ્વાગત કરે છે. બહારગામથી પધારેલ મહેમાનો ઘણા બધા છે, આમ આંગળીના વેઠે ગણાતા નથી. આ એક દેખાય છે પૂજ્ય મહાસતીજીની ભક્તિ ભાવના. લોકો દૂર દૂરથી આ એક જાપ માટે कलकत्ता आ गया. आप सबका, सभी का श्री कलकत्ता संघ कामाणी जैन भवन की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. आपकी स्वागत में कुछ भी खामी रह गई हो तो हम मिच्छामी दुक्कड़म भी मांग लेते हैं, क्योंकि हम लोग गुजराती हैं, माफ भी कर लेते हैं और माफी मांग भी लेते हैं. तो आप माफी देंगे ये हमको खातरी है. आचार्य पूज्य गुरुदेव आत्माराम जी महाराज साहेब, परम पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहेब અને માનવસિંહની ગુરુવર્યા શ્રી કમલાવતીજી મહાસતીજી નો જન્મ દિવસની ઉપલક્ષે આ 1.25 કરોડ મંત્રના જાપનું આયોજન. તે ઉપલક્ષે પૂજ્ય ગુરુદેવ અને પૂજ્ય ગુરુનીને આપણે સૌ સાથે મળી બે હાથ જોડી વારંવાર એમના ચરણમાં પડી પ્રાર્થના કરીએ કે આપના આશીર્વાદ શ્રી સંઘ મને કામાણી જૈન ભવનમાં સદૈવ વરસાતા રહો, એ મંગળ પ્રાર્થના. હવે કામાણી જૈન ભવનના પ્રમુખ श्री अतुलभाई जोशी ने विनंती करीश, आओ आप स्वागत करो. जय जिनेन्द्र. परम तपस्वी पूज्य जगजीवन जी महाराज साहेब तथा परम दार्शनिक पूज्य जयंतीलाल जी महाराज साहेब चरणों में कोटि कोटि वंदन. प्रवर्तिनी मेवाड़ गौरव पूज्य डॉक्टर चंदाश्री जी महासती जी तथा परम पूज्य डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहेब અને આદિ સતીઓના ચરણોમાં નતમસ્તક હૃદયપૂર્વક વંદન. આજે આપણે સૌ શ્રમણ સંઘના રત્નત્રયી એવા આચાર્ય
पूज्य श्री गुरुदेव आत्माराम जी महाराज साहेब, आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव शिवमुनि जी महाराज साहेब तथा मालव श्रेणी गुरुवर्य श्री कमलावती जी महासती जी का जन्म ज्योति समारोह पर उपलक्ष्य आयोजित 1.25 કરોડ જપ સાધનાના આયોજન દ્વારા તેમને ભાવાંજલિ અર્પણ કરવા એકત્રિત થયા છે. આ ત્રણેય સંયમના સંગાત એવા રત્નત્રયી સાધના, સંઘ સેવા અને એકતાના કાર્યક્રમમાં પોતાના જીવનમાં સમર્પિત કર્યું છે અને શ્રમણ સંઘની ગુરુ પરંપરાને ભવ્ય રીતે ઉજળી કરી છે. એમનું ગુરુ તત્વ કેટલું મહાન હતું એનું જીવંત ઉદાહરણ છે આપણી વચ્ચે બિરાજમાન પરમ પૂજ્ય ડોક્ટર ચંદ્રશ્રીજી તથા પરમ પૂજ્ય ડોક્ટર અક્ષય જ્યોતિજી મહાશક્તિજી આદિધાણા 8, જેમણે આ ચાતુર્માસ દરમિયાન વિવિધ સાધના આરાધનાથી આપણને ધર્મમય બનાવી દીધા છે. આ ત્રણેય ગુરુવર્યોનું જીવન આપણા સૌ માટે પ્રેરક, માર્ગદર્શક અને આદર્શ સમાન છે. એક એક ગુરુ વિશે આપણે બોલવા બેસીએ તો કલાકો વીતી જાય, પણ તેમનો મહિમા વર્ણવવો અશક્ય છે. હવે ભવ્ય આત્માની જન્મ જયંતિના પાવન અવસરે આયોજિત 1.25 કરોડ જાપ સાધનાના આયોજનના એક એક મંત્ર આ દિવ્ય આત્માઓને આપતી ભાવાંજલિ, શ્રદ્ધાંજલિ છે. શ્રી હંસરાજ લક્ષ્મીચંદ કામાણી જૈન ભવનના આંગણે આવો ભાવાંજલિનો કાર્યક્રમ પ્રથમવાર યોજાઈ રહ્યો છે. આવા સુંદર આયોજન યોજવા બદલ પરમ પૂજ્ય મહાસતીજીનો શ્રી સંઘ અત્યંત હૃદયપૂર્વક આભાર પ્રગટ કરે છે. આવો આપણે સૌ આ 1.25 કરોડ જાપ સાધના કરીને ત્રણેક પુણ્ય આત્માઓના આપણા અંતરના શુભ ભાવો સમર્પિત કરી અંજલિ આપીએ. જય જય. श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरण ईशा वंदन नमन. आचार्य भगवान, युवाचार्य श्री जी, उपाध्याय श्री जी, प्रवर्तक श्री जी, प्रवर्तनी, उपप्रवर्तनी, सलाहकार मंडल, मंत्रिमंडल, सभी गुरु भगवंतों के श्री चरणों में कोटिशा वंदन नमन. कमानी कलकत्ता श्री संघ के मंगलमय प्रांगण में और आज चतुर्वेद संघ के साक्षी से यहाँ पर चातुर्मासात विराजित श्रमण संघीय प्रवर्तनी डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब, परम पूज्य साध्वी जी, प्रखर व्याख्याता डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब और इस मंगलमय प्रसंग का साक्षी बनने के पधारे हुए सभी साधु जी, साध्वी जी, सभी को सादर वंदन नमन. धर्म सभा में पधारे हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत वंदन नमन, हार्दिक स्वागत. कलकत्ता श्री संघ, कमानीवाड़ी श्री संघ जो एक बहुत ही भाग्यशाली और सौभाग्यशाली ऐसा संघ जिनको प्रवर्तक जी का चातुर्मास महाराष्ट्र में से करीबन 1800 किलोमीटर का उग्र विहार करके कलकत्ता में श्री संघ की विनंती को मान देकर यहाँ पर पधारे और पिछले 2 महीने में आपने मां सती जी के मुखारविंद से जिनवानी का लाभ लिया और आज का ये नजारा 8:30 बजे हम आए, 8:45 बजे आए तो पूरा हॉल भरा हुआ था. ये सब आपकी धर्म आराधना को मैं वंदन नमन करता हूं और खास करके महासती जी, अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, जिनके प्रवचन में मैंने एक खास नोट किया है. वेन महाराज साहब, आप जब महाराष्ट्र में थे, उस तरफ विहार कर रहे थे, आप धर्म पर ज्यादा प्रवचन देते थे, धार्मिक क्रिया पर प्रवचन देते थे. लेकिन पिछले कई दिनों पे मैं आपका यहाँ पर जो प्रवचन होता है वो देखते आया हूँ और इस प्रवचन में आपने धार्मिक कार्यक्रमों के साथ, धार्मिक प्रसारों के साथ साथ भी आपने वर्तमान में जो हमारे समाज में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स भी आपने कटाक्ष कर हम सभी यहाँ पर जितने भी महानुभाव है, हमारी श्राविका है, सबको आपने उसको उजागर किया है. ये बहुत बड़ी हमें प्रसन्नता देती है कि हम तो धर्म ध्यान तो करते ही है, लेकिन
लेकिन साथ साथ में हमारे समाज में जो कुछ कुरीतियाँ चल रही है, हमारे युवक युवतियाँ जो भी जिस तरफ मार्ग पर चल रही है, उनको सुधारने के लिए, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए आपके जो प्रवचन है बहुत ही हमें लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। हम YouTube पे आपको हमेशा सुनते रहते हैं। समय बहुत कम है, इसलिए आज यहाँ पर हमारे सिद्धिलाल जी साहब कर्नावट, जो हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन भी है, और 2015 में जो साधु सम्मेलन हुआ था, श्रवण संघीय साधु सम्मेलन, आप उसके संयोजक भी थे। और अभी आप वर्तमान में थाना से है और थाना श्री संघ यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो कुछ बोलेंगे। वैसे ही हमारे मातोश्री वृद्धाश्रम, बेन महाराज साहब की प्रेरणा से नासिक में एक वृद्धाश्रम चलता है। करीबन 90-100 के आसपास वहाँ पर वृद्ध रहते हैं, और हमारे अध्यक्ष कांतिलाल जी चोपड़ा जैन, इनके नेतृत्व में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अच्छा, मतलब 5 स्टार तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी सुविधा देने वाला एक महाराष्ट्र में सबसे अच्छा वृद्धाश्रम वहाँ पर अभी बन रहा है, बन चुका है। 40 कमरे हम तैयार 40 कमरे वहाँ पर तैयार हो चुके हैं। ये हमारे कांति भाऊ और उनकी पूरी टीम, कोषाध्यक्ष भी है सुनील भाऊ, अनिल जी हिमंतराय जो महामंत्री पीछे प्रवेश में आए थे, और हमारे सिद्धिलाल जी साहब भी उसके ट्रस्टी है, मैं भी ट्रस्टी हूँ। ऐसे सभी की मेहनत से एक बहुत ही अच्छा, महाराज साहब की प्रेरणा से वृद्धाश्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो ये सामाजिक कार्य के, धार्मिक कार्य के साथ सामाजिक कार्य में भी आपकी बहुत बहुत सेवा रहती है, आपका अनुदान रहता है। हम उसकी सत्य अनुमोदना करते हुए कमानीवाड़ी श्री संघ, जो यहाँ पर श्री हंसराज लक्ष्मीचंद कमानी जैन भवन में मातुश्री जसवंतीबेन चमनलाल देसाई स्थानकवासी जैन धर्मालय के सभी पदाधिकारी हमेशा फोन करते रहते हैं। जो कार्यक्रम होते रहते हैं उनकी सूचना हम तक आती रहती है, और हमेशा उनका आग्रह रहता है कि आप पधारो। आज बड़े मतलब 2 महीने के बाद हम सब पधारे हैं। जैसे कार्तिक और प्रवेश में आए थे, मैं नहीं आ सका था, तो सभी पदाधिकारियों का यहाँ पर जो धर्म भावना की जो आपने यहाँ पर जोत जलाई है, जिसको आप निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, उस सभी कार्य के लिए आपके सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, जो हमारी स्थानकवासी समाज की मातृ संस्था है, उनकी ओर से, उनके परिवार की ओर से माँ सती जी की सुख साता पूछता हूँ, वंदन पूछता हूँ। और खास करके मेरा पीएच जैन परिवार, वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूँ तो मैं 1999 से माँ सती जी के साथ जुड़ा हूँ। उसके पहले मैं कुछ भी नहीं था, अपना बिजनेस और मैं। लेकिन 1999 में हमारे यहाँ लोखंडवाला में चातुर्मास हुआ, और माँ सती जी बेन महाराज साहब की प्रेरणा से मैं इस समाज सेवा में अग्रसर हुआ। वो मेरा पहला समाज में एक कदम रखना था, और उनके आशीर्वाद से 1999 से आज तक माँ सती जी की प्रेरणा आशीर्वाद से आपके समक्ष खड़ा हूँ। तो मैं मेरे पीएचएन परिवार की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सुशीला जी, कांतिलाल जी जैन एवं समस्त पीएचएन परिवार की ओर से माँ सती जी को वंदना करता हूँ, सुख साता पूछता हूँ। पुनश्च पदाधिकारियों को सभी को धन्यवाद। आप सब इतनी बड़ी उपस्थिति में यहाँ पर आज पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जय जिनेंद्र, जय महावीर। तो आइए इस चेहरे की डबल मुस्कान बढ़ाने के लिए मुमुक्षु वैरागी शीतल सोलंकी, जिसका श्री संघ कमानी जैन भवन स्वागत करने जा रहा है, मैं उसके स्वागत से पहले बता दूं, वैराग्य और संसार का संघर्ष क्या होता है। 11 साल का इसका संघर्ष है। 2014 में इसको वैराग्य की भावना पैदा हुई थी, और 2025 में इसे आज्ञा मिली। तो अतुल भाई अपना स्थान ग्रहण कर ले। जिनके शासन में मेरा एडमिशन होने जा रहा है, ऐसे वीरों के वीर प्रभु महावीर के श्री चरणों में कोटि नमन। जन जन के श्रद्धा के केंद्र मेरे आराध्य जगत वल्लभ जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में भावभीनी वंदना। श्रवण संघ के सरपंच आचार्य भगवंत
आत्मा आनंद देवेंद्र शिव के पावन श्री चरणों में कोटि शरणमन। विश्व संत उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, लोकमान्य संत परम पूज्य गुरुदेव श्री रूप मुनि जी महाराज साहब, मेरे आराध्य उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब प्रथम के पावन श्री चरणों में कोटि वंदन। जय मालव सिंहनी परम पूज्य गुरुवैया कमलावती जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटि वंदन, जिनके चरणों में मैं अपना जीवन समर्पित करने जा रही हूँ। ऐसी मेरी अनंत अनंत उपकारी वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गुरुवैया डॉक्टर संयमलता जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में भावभीनी वंदना। सुरधर्मा पाठ पे विराजमान मेवाड़ गौरव मालवा परिवर्तनी परम पूज्य गुरुवैया डॉक्टर चन्ना जी महाराज साहब, मास्टरमाइंड प्रज्ञामूर्ति परम पूज्य गुरुवैया डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब एवं समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ एवं बेस्ट चैन आत्माओं के पावन पुनीत चरण सरोजों में मेरा कोटि वंदन। गुरु दरबार में उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 25 के तीर्थंकर कोलकाता श्री संघ को मेरा प्रणाम। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, कोलकाता श्री संघ के तत्वाधान में एवं मेवाड़ गौरव परम पूज्य गुरुवैया डॉक्टर चन्ना जी महाराज साहब, डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के आदि ठाणे के पावन सानिध्य में दास गुरुवैया मालव सिंहनी शमनी रत्ना परम पूज्य गुरुवैया कमलावती जी महाराज साहब की जन्म जयंती बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। हे गुरुवैया, तेरी जीवन गाथा शब्दों की मोहताज नहीं, गुण गाऊं में क्या क्या तेरे, मेरे पास अल्फाज नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं। हे पूज्य गुरु माँ, तू विश्व का दिव्य सितारा है, तू झंझट के आंखों का तारा है, तू विश्व का दिव्य सितारा है, तू झंझट के आंखों का तारा है। दुनिया करती होगी अन्य देवों की पूजा, दुनिया करती होगी अन्य देवों की पूजा, मुझे तो सिर्फ एक तेरा ही सहारा है, मुझे तो एक तेरा ही सहारा है। जन्म जयंती के इस पावन प्रसंग पर आपके शिष्य आपके श्री चरणों में अनंत 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 वंदना करती है। अनादि काल से हमारी आत्मा 4 गति 24 घंटा 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण कर रही है। कभी नरक, कभी तिर्यंश, कभी मनुष्य तो कभी देव गति, लेकिन एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है जहाँ से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस भवभ्रमणा को मिटाने के लिए, इस जन्म और मृत्यु के श्रृंखला को मिटाने के लिए हमें मनुष्य गति के साथ साथ दीक्षा रूपी वीजा की आवश्यकता है, क्योंकि दीक्षा असत्य से सत्य की यात्रा है, दीक्षा अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, दीक्षा अणु से विराट की यात्रा है, दीक्षा आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा है, दीक्षा राग से वैराग्य की महान यात्रा है, दीक्षा एक आत्मा संकल्प है जो सारे विकल्पों को दूर कर देता है, दीक्षा एक आत्मा मंत्र है, यह मंत्र हमें पूज्य गुरुवैया से ही मिलता है। हे गुरुवैया, जिस तरह समुद्र को पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गुरु के मार्गदर्शन के बिना इस संसार सागर से पार होना अति ही दुर्लभ है। गुरु के चरणों में ही मोक्ष की प्राप्ति है। आज मैं भी परम पूज्य गुरुवैया डॉक्टर चन्ना जी महाराज साहब एवं परम पूज्य गुरुवैया डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में आई हूँ। कहते हैं, जिनके मुख में सरस्वती का वास है, जिनके आंखों में करुणा का वास है, जिनके वचनों में अमृत का वास है, ऐसे पूज्य गुरुवैया का मेरे ही नहीं हम सबके दिलों में वास है, हम सबके दिलों में वास है। जिनका नाम ही चंदन है, कहते हैं चंदन जिस वातावरण में रहता है वह
नशोनुमा हो जाता है। जिनके माथे पर चंदन का तिलक लगाया जाता है वो भी खुशबू से महक उठता है, और जिस अंगूठे से लगाया जाता है उसका अंगूठा भी महक जाता है। हे गुरु भैया, मैं भी आपके श्री चरणों में महकने और खिलने के लिए आई हूँ। आपके श्री के बाजू में विराजमान परम पूज्य गुरु भैया डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, क्या कहूँ मैं इनके बारे में। जिनकी ज्योति ही अक्षय है, जिनका नाम ही अक्षय है, और जो अक्षय होती है वो कभी खंडित नहीं होती। हे गुरु भैया, मैं भी आपके चरणों में अक्षय बनने आई हूँ। आप ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं भी अपने जीवन को अक्षय बना सकूं, मैं भी अपने संयमी जीवन को अक्षय बनाकर उस चंदन की तरह आपके इस कमला ऊपर में महक सकूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। हे गुरु भैया, एक छोटी सी अरदास लेकर आई हूँ। मुझे इस संसार सागर से तिराने के लिए, मुझे प्रभु वीर का रजवरण देने के लिए 22 फरवरी 2026 कमोल गांव में आप श्री को पधारना है। आपकी उपस्थिति मेरी मन स्थिति को बदलेगी। आपका आगमन मेरा आवागमन मिटा देगा। आपका आशीर्वाद मुझे आबाद कर देगा, मुझे आबाद कर देगा। मम गुरु भैया दक्षिण चंद्रिका महासाध्वी डॉक्टर श्री संयम लता जी महाराज साहब ने भी विनती पत्र भेजकर आपको दीक्षा में पधारने की विनती की है, और मुझे कहकर भेजा है बड़े महाराज साहब छोटे महाराज साहब दोनों से स्मृति लेकर ही आना। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, ओ महावीर के एजेंट, ओ महावीर के एजेंट, स्मृति प्रदान करो अर्जन, स्मृति प्रदान करो अर्जन। कोलकाता से सब ने जो मेरा स्वागत किया, जो मेरा अभिनंदन किया, मैं सोच रही हूँ यह अभिनंदन किसका, क्यों, इसलिए अभिनंदन है। यह प्रश्न मेरे मन में बार-बार आ रहा है। मुझ में अभिनंदन जैसा कुछ भी नहीं है। यह अभिनंदन किसी देह का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि ये अभिनंदन आत्मा का है। संयम मेरा पथ है, त्याग वैराग्य मेरा पथ है, और मोक्ष मेरी मंजिल है। अब आप समझ गए होंगे, यह अभिनंदन आत्मा के संकल्प का है। यह अभिनंदन मेरा नहीं, यह अभिनंदन जगत वल्लभ जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथुर जी महाराज साहब का है। यह अभिनंदन मेरा नहीं, यह अभिनंदन मालवसियानी परम पूज्य गुरु भैया कमलावती जी महाराज साहब का है। यह अभिनंदन मेरा नहीं, परम पूज्य गुरु भैया चंदा जी महाराज साहब का है। यह अभिनंदन मेरा नहीं, यह अभिनंदन परम पूज्य गुरु भैया डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब का है। यह अभिनंदन मेरा नहीं, मेरे माता पिता का है। यह अभिनंदन मेरा नहीं, यह मेरे जिन शासन का अभिनंदन है, जैन धर्म का अभिनंदन है। यह अभिनंदन संयम के पथ का है। यहाँ पर विराजमान सभी महानुभावों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मेरी दीक्षा 22 फरवरी 2026 कमोल गांव राजस्थान में होने जा रही है। आप अपनी इस बिटिया को, आप अपनी इस बहन को आशीर्वाद देने जरूर जरूर आना, जरूर आना। घर को लगा देना ताला, और कलकत्ता वालों आना, जरूर आना, घर को लगा देना ताला। ना कोई कारण होगा, ना कोई बहाना होगा, आपको मेरी दीक्षा में आना ही आना होगा, आना ही आना होगा। इन्हें शिव मंगल भावों के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। आप संस्था का नाम ले लो। दीक्षार्थीનું સન્માન પાલ સાહેબ શ્રી સંઘ તરફથી આવો બધા। एक मिनट नीचे, हाँ नीचे उतरो, ये तो सब ऊपर आएंगे। हाँ पकड़िए, बराबर आए। आओ। श्री संघ की बहुत इच्छा थी कि शीतल एक दिन रुके और स्वागत पारसधाम के युवा अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी चिराग साहब कि भाई चिराग भाई आप दीक्षा लो, तब हम आपका स्वागत करें। शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।
મારી બેના દીક્ષા લેવે મારી બેના દીક્ષા લેવે તારી પણ બહાને કેવી મારી છે મોજી દીક્ષા સારું થાય લેવે માં સુધી જે આયા છે સાથ લઈને જાય मेरी भांजी दीक्षा लेवे जैनम जयती एक नारा मैं बोल रही हूँ आप सभी मेरे साथ नारा लगाओगे क्या? पहले हाथ रखो, लगाओगे? शीतल सोलंकी ने क्या किया शीतल सोलंकी ने क्या किया? एक जमाई कम किया हाँ सर अभी यहाँ विराजित डॉक्टर चंद्रमा जी महाराज साहब एवं डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब आदि सतियों के चरणों में विनम्र वंदना और यहाँ विराजित गुरुदेव के चरणों में विनम्र वंदना। आज का ये जो नज़ारा है देखने के बाद में मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े शहरों में हमारे धर्म के प्रति आस्था कम होती जा रही है, लेकिन ये जब मैंने देखा तो मैं खुद को गलत ठहराया, मैंने खुद को कि नहीं, धर्म जागरूक है, हम सभी जागरूक है धर्म के प्रति, हमारे मन में कितना प्यार, कितनी संवेदना है, और ये सब गुरु भगवंतों की आशीर्वाद से होता है। ये जब आते हैं वर्षावास में, हमें 4 महीने उनका सहवास मिलता है, और ये जो आज नज़ारा है ये उसी का, क्या कहते हैं, उसी का क्या, उसी का नतीजा है। थोड़ा मैं बोलने में कम बोलता हूँ मैं, लेकिन अभी जाते जाते 1-2 लाइनें बोल के जाता हूँ। संत का सम्मान होना चाहिए, प्रेम सा व्यवहार होना चाहिए, संत का सम्मान होना चाहिए। संत वो जो संत जो निर्ग्रंथ हो, सत्य ही आधार होना चाहिए, संत का सम्मान होना चाहिए। आपने हमें बोलने का मौका दिया, कामानी संघ का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने हमको बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं, कोई छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका आभार प्रकट करके मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। ठीक। और अभी भाई चंद्रकांत जी पगारिया बोल रहे थे कि कलकत्ता जैसी कैपिटल सिटी के अंदर इतनी बड़ी जन्मदिन, तो एक बात कह दूं, सूझे सारू छे, सूझे सारू छे, कलकत्ता આપણું મારું છે। માં સતીજી આપ ગુજરાતીમાં બોલો તો બહુ મીઠું લાગે છે। એના માટે વધારે ગુજરાતી બોલું ના તમને એ પણ ખરાબ લાગશે, એના માટે કમ ગુજરાતીમાં બોલું और ज्यादा हिंदी में। आइए कीर्तिभा દીક્ષાર્થીનો સન્માન માટે આપણી પેટા સંસ્થા जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को हरेश भाई તમે અહીંયા एक मिनट खड़े हो जाओ। जन वाला तो हो गया क्या? आपका हो गया? પ્રાણ મહિલા મંડળ પણ આ ભાઈઓનું एक કાર્ય मिनट કરીને આપી જશે। जन वाला
रहेगा ना आंटी हंसा दीक्षार्थीनो હવે સુરતી મહિલા મંડળ બહુ મંડળ સુશીલ બહુ મંડળ ચંદન સ્વાધ્યાય મંદિર પ્રાણ મહિલા મંડળ दीक्षा लेने वालों को ઝાલાવાડીના પણ આવી જાય अनुमोदना 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 वारंवार अनुमोदना 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 वारंवार जैनम जयती जैनम जयती बैठो तुम्हारी भी दीक्षा की अच्छा तुम भी कर लेंगे सीएसएम के बच्चों की टीम भी बैरागिन का स्वागत कर रही है सीएसएम टीचर बैठना है मेरे से दीक्षा लेना है ओके फोटो सेशन ओके मेरा होगा यस भजन शासन देव की वीडियो चालू है फोटोग्राफी जिन्हें पर्सनल अगर करना है तो वे मांगलिक के पश्चात पैरागिन का कर सकते हैं लेकिन अभी बीच में नहीं તમે મારો ટ્રાયપોડ દેખી નહીં ओ नहीं अच्छा ज्यादा वाली रुको 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 मैंने बोला पर्सनल इज नॉट अलाउड पंजाब जैनसन ये प्रकाश जी हरीश जी रुक जा एक से આજે ને नहीं अभी 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 बात करें અહિંસા સંઘ તરફથી હા અહિંસા ભવનના આવો પદાધિકારીઓ વીર પ્રકાશજી જૈન સંદીપજી જૈન હરીશજી જૈન અમિતજી જૈન आइए 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 जल्दी 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 संदीप जी आप हरीश भाई लेट हो रहा है ओनली टू मुझे कार्यक्रम काफी है अभी प्रवर्तनी मेवाड़ डॉक्टर चंदना के महाराज साहब को अपनी गुरु माँ के प्रति और आचार्य भवन के प्रति अपने विचार रखना है आप धैर्य बनाए रखें आपके सारे पॉइंट मेरे पास है लिए बिना मत जाना आज की प्रसादी वापस नहीं मिलेगी लेकर जाना जैनम जयती जैनम जयती दीक्षा लेने वाले को दीक्षा लेने वाले को ओके अपना स्थान ग्रहण कर लें अपना करो नहीं एक मिनट सौ मृदुला बहन शशि महाराष्ट्रमणी डॉक्टर चन्ना जी उपस्थित उपस्थित दीक्षार्थी बहन सभी भाई बहनों को मेरा जय जय मैं आज के प्रसंग पर एक छोटी सी घटना लिखी मैं सुनाता हूँ अरिष्ट देवी प्रभु का महाजाप निर्जरा का महाकारण है ओम ह्रीम लगाकर ग्रहों के कष्टों का हर कर ग्रहों के कष्टों का निवारण है सोने में सुगंध है दीक्षार्थी बहन का उपस्थित होना 1 करोड़ सवा लाख का जाप और जाप के साथ शक्ति अनुमोदना वास्तव में निर्वाण का उपकरण है परम आदरणीय परम श्रद्धेय महासती डॉक्टर चंदना जी आप मेवाड़ गौरव हो प्रवर्तनी है जन जन की आस्था के केंद्र अक्षय ज्योति जी महाराज साहब मंच पर विराजित ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी साध्वीगण संघ के अध्यक्ष देवियों और सज्जनों आज यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम है खास करके हम जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं
वह है ऋण निर्देश का कार्यक्रम। ये ऋण निर्देश का कार्यक्रम जो है, हम लोग पिछले 30-35 साल से हर वर्ष आते हैं, क्योंकि आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इनका जो फिरका है, इनका जो ग्रुप है, इनका जो टोला है, वो श्रमण संघ में सबसे बड़ा टोला है। लगभग 35-36 साधवियां है। और खास एक बात है, ये पूरे ग्रुप में इतनी यूनिटी है, इतनी हार्मनी है, इतनी होमोजेनिटी है, वो शायद ही श्रवण संघ में और अन्य संघ में मैंने देखी है। इनके बाद मतलब कमलावती जी महासती जी जो मालव सिंहनी थी, प्रसन्न व्यक्तिमत्व की मालकिन थी, और इन सब साध्वियों को उनके प्रति इतना आदर है, इतना मान सम्मान है, जो आपको शायद ही कहीं देखने मिलेगा। हम शायद ही अपने पेरेंट्स की जन्म जयंती मनाते हैं, इट इज वेरी वेरी रेयर। मगर हर वर्ष ये जितनी भी साधवियां है, 35-36 जितनी भी है, वे विदाउट फेल उनके लिए श्रद्धांजलि और आदरांजलि का कार्यक्रम करती है। ये खास बात है। आपने अभी 4 महीने तक इनको सुना है, इसलिए मैं ज्यादा इनके बारे में कहना नहीं चाहता। फिर भी कुछ बातें कहे बिना मैं रह नहीं सकता। आप विद्वान तो हो, नम्र तो हो, क्योंकि आप देखोगे विद्वत्ता और नम्रता शायद ही इकट्ठा पाए जाते हैं। ये दोनों बहुत रेयर क्वालिटीज है, मगर ये पूरे ग्रुप में जितनी विद्वत्ता है, जितने ये शिक्षा विद्य है, उतनी भी नम्र है। साथ ही साथ इनमें मधुरता है और कठोरता भी है। इनका जितना भी ग्रुप है, ये हाईली एजुकेटेड है। मतलब इनमें आधे से ज्यादा पीएचडी है और सारे के सारे शिक्षा विद्य है। और खास बात आपको कहना चाहूंगा, आज के दिनों में श्रवण संघ की जो नियम है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कोड ऑफ एथिक्स है, उसका स्ट्रिक्टली पालन करने वाली ये महासतियां है। मतलब श्रवण संघ के नियम ऐसे है कि 2 बार चातुर्मास करना चाहिए, दिन में 2 बार प्रवचन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, धर्म चर्चा करनी चाहिए। वे रेगुलरली यहाँ पर की जाती है। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप देखोगे, कोई आडंबर नहीं, कोई शोमनशिप नहीं, कोई दिखावा नहीं, और हमेशा ये धर्म चर्चा में लीन रहते हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों में तल्लीन रहते हैं। सबसे महत्व की बात जो आज मैं कहना चाहूंगा, हर जगह आजकल लोग कहते हैं कि युवा धर्म से प्रवृत्त होता जा रहा है, धर्म से मुंह मोड़ रहा है, धर्म के लिए उसे आस्था नहीं है। मगर आप यहाँ पर देखोगे ज्यादा से ज्यादा युवा है। इसका मुख्य कारण है ये धर्म मर्म कैसे समझाना, युवाओं को कन्विंस कैसे करना और उन्हें मोटिवेट कैसे करना, इनकी कला इन्हें अवगत है। और इसीलिए शायद आप देखोगे इनके चातुर्मास के लिए हर संघ लालायित रहता है, क्योंकि इनके प्रवचन जब आप सुनते हैं तो ये शायद अतिशय युक्ति होगी, मगर आप समझने की कोशिश करिए। मानो अमृत की वर्षा हो रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है, तो ऐसे ही नहीं इतने लोग जमा हो जाते। तो मेरा कहने का मतलब है कि कलकत्ता संघ ने इनकी जो सेवा की है, उतनी ही सेवा आज आपके लिए हम लोग विनंती को आए हैं। मैं विनंती कहूंगा कि जितने भी थाना के लोग आए हैं, कृपया खड़े हो जाए। मैं पारस बाबू को भी विनंती करूंगा, जितने भी
ये जो विनंती है ये केवल थाना संघ की नहीं है बल्कि पूरे महाराष्ट्र संघ की है। केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया 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 आज हमारा रंग सो महासती जी 26 का चातुर्मास आप हमारी झोली में डालिए। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थाना संघ के साथ कमाई जन्मों की आपके साथ है। थैंक यू सो मच। होने में लगता है आपकी कृपा है जो ये वाइब्रेशन वाला सिस्टम आपने खत्म करवा दिया। मंच पे आने के लिए बहुत वाइब्रेशन होता था। परम श्रद्धेय सर्वप्रथम महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करने के पश्चात आज जिन महापुरुषों की महागुरुवर्या की जन्म जयंती है उस उपलक्ष्य में 1.25 करोड़ जाप का आयोजन यहाँ हुआ है और ऐसी विभूतियों के चरणों में निवेदन करेंगे कि आपकी ऐसी विभूति जो 1.25 करोड़ जाप का आज अनुष्ठान करने का मन करता है और आशीर्वाद मांगते हैं हम प्रवर्तिनी जी से कि ऐसी शक्ति प्रदान करें हमें भी कि हमारे पश्चात 1.25 करोड़ का जाप ना भी हो, केवल एक 1.25 घंटे का गुणगान भी हो जाए, ऐसा व्यक्तित्व हमारा भी हो। आज इस अवसर पर हमारे परिवार के सदस्य जैसे शीतल जी हमारे निकट परिवार से ही हैं, दीक्षार्थी बहन शीतल जी सोलंकी, इनके बारे में मैं कुछ कहूँगा। उससे पहले मैं कमलावती जी महाराज साहब के इस फुलवारी के बारे में कहूँगा। मैं साक्षी बना हूँ इस कमलावती जी महाराज साहब की फुलवारी के 7 दीक्षाएं मैंने इस ग्रुप की मैंने देखी है। अक्षय जी महाराज साहब 7 दीक्षाएं राजू भाई ने देखी, लेकिन अभी तक राजू भाई ने बोला नहीं कि मुझे दीक्षा लेना है। और ये पाटा खाली नहीं रहता है, एक भी जगह खाली नहीं रहती आपके कैसे दीक्षा है। तो इस विषय पर मैं ये कहूँगा कि 2007 में पालघर में वीर माता यहाँ विराजित हैं मंजू जी पालरेचा, जो अक्षय जी महाराज साहब के आशीर्वाद लेने के लिए पधारे थे और आज देखो 17 साल के बाद उनके ही सानिध्य में एक शिष्या उनको मिली है। शीतल जी ये कहूंगा मैं खाली आपको कि मंजू जी पालरेचा को जो शिष्या इतनी जल्दी मिली है वही आपके साथ भी हो और कमला ग्रुप में एक फूल और खिले, ये आप प्रयास जरूर करिएगा। शीतल जी सोलंकी ऐसे समृद्ध परिवार से हैं, ये अगर चाहें तो इनका परिवार इनके मार्ग में फूल बिखेर देवे ताकि कांटे भी ना चुभे इनके चरणों में। ऐसे परिवार से इतनी भौतिक साधनों को मिलते हुए भी जिन शासन की सेवा में यहाँ बना रहे हो, ये बहुत हर्ष की बात है। बहुत बहुत अनुमोदना हम आपकी करते हैं और विशेष आपको आज आशीर्वाद मिला है अक्षय जी महाराज साहब का, चन्ना जी महाराज साहब का। आप आगे से आगे इस पद पर बढ़े, ये अनुमोदना करते हुए आपके दीक्षा जीवन पे हम आपको बहुत सम्मानित करके हर्ष लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, मैं चाहे पश्चिम बंगाल की नहीं हूँ और न ही गुजराती हूँ, लेकिन 2000 किलोमीटर चलकर 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके पुणे से कलकत्ता आए, लेकिन 2 सेकंड विदिन 2 सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कभी कि हम कलकत्ता क्यों आए। कलकत्ता वालों ने जो प्यार दिया, कलकत्ता वालों ने जो भक्ति की, कलकत्ता वालों ने जो सेवा दी, और कलकत्ता ऐसा लगता है हर पल कि कलकत्ता वाले वापस बुलाए। हम हमेशा क्या है
वाला है। ओल्ड सिटी इज ए गोल्ड सिटी, राइट? कलकत्ता हिस्ट्रिकल सिटी, ओल्ड सिटी मतलब। आइए प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। अत्र विराजित महासती जी, मेवाड़ गौरव डॉक्टर चन्ना जी महाराज साहब के एवं प्रखर वक्ता डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब एवं सभी साध्वी वृंद के चरणों में कोटि वंदन। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है कि कलकत्ता नगरी में महासती जी कमलावती जी महाराज साहब का जन्म जयंती समारोह एवं 1.25 करोड़ का जाप अनिष्टहारी भगवान अरिष्टनेमी पार्श्वनाथ भगवान का अनुष्ठान एवं साध्वी मुमुक्षु शीतल जी सोलंकी इनका स्वागत समारोह, इतने सारे कार्यक्रम एक साथ किए जा रहे हैं, उसमें सम्मिलित होने का मौका हमें मिला है। तो हमें बड़ी खुशी है कि इस अनूठे कार्यक्रम में हम लोगों को आमंत्रित किया गया और इसमें हमें सम्मिलित होने का मौका मिला। मैं अमानी श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस भव्य आयोजन के लिए जितनी मेहनत उन्होंने की है, शायद ही कोई श्री संघ करता होगा। इतनी बड़ी मेहनत, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ सर्व धर्म प्रेमी उपस्थित है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी को मेरी तरफ से जय जिनेन्द्र और आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस अनूठे कार्यक्रम में आपका बड़ा ही सहभाग रहा। मैं कमलावती जी महाराज साहब के बारे में बोलना चाहूँ तो जरूर 2 लाइन उनके बारे में बोलूँगा। कमलावती जी महाराज साहब जो है वो त्याग का आदर्श थे। गृहस्थ जीवन की सारी सुविधाओं को सहजता से त्याग कर उन्होंने संयम का व्रत धारण किया। तप की साधना, उपवास, आयंबिल, एकासन और निरंतर साधना ने उन्होंने आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। धर्म प्रचार, अपने उपदेशों से, प्रवचनों से और आशीर्वचनों से असंख्य आत्माओं का धर्म मार्ग की ओर अग्रसर किया। करुणा और सेवा की मूर्ति थे वो। उनका जीवन करुणा से ओतप्रोत रहा। वे हमेशा जीव मात्र की भलाई के लिए सच्चा धर्म है का संदेश देती रही। उनकी वाणी में सरलता और मधुरता, आचरण में पवित्रता और दृढ़ता थी तथा हृदय में करुणा और वात्सल्य का अद्भुत संगम था। जब हम साध्वी श्री कमलावती जी महाराज साहब को स्मरण करते हैं तो ये अनुभव होता है कि उनके जीवन हमें सिखाता है संयम ही सच्चा आभूषण है, तपस्या ही आत्मा की शक्ति है। धर्म प्रचार और आत्म साधना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आइए हम सभी साध्वी महाराज साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में धैर्य, संयम, करुणा और साधना को अपनाएं। यही उनके प्रति हमारी सभी की सच्ची श्रद्धांजलि हो। आज यहाँ इस कार्यक्रम हेतु संपूर्ण भारतवर्ष से कई मान्यवर पधारे हुए, जिसमें माननीय सोमतीलाल जी साहब कर्नावट ये भी विशेष यहाँ आज अपने श्री संघ को लेकर विनंती, थाना चातुर्मास की विनंती को लेकर आए। इन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऑल द वे अपना स्वास्थ्य अच्छा न रहते हुए भी इस तरह का अनुभव चातुर्मास करने का उन्होंने मन बनाया है। महाराज साहब, आप जरूर उनकी विनंती को मद्देनजर रखना। वैसे ही आज इस संघ के निमंत्रण पे ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी मोदी खास करके यहाँ पधारे। मातोश्री वृद्धाश्रम के ट्रस्टी श्री सुनील जी बम, श्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी चोपड़ा, इनके सुपुत्र श्री सुनील जी चोपड़ा, राजू भाई मांडोर एवं कई महाराष्ट्र से कई विभूतियां खासकर यहाँ पधारी हुई है। महासती जी चन्ना जी महाराज साहब के बारे में तो आप सभी ने सुना ही है। अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के बारे में आपने सभी ने सुना है, इसलिए मैं वो दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं इस तेरापन भवन
के सभी ट्रस्टियों को भी विशेष धन्यवाद देता हूँ कि इस आयोजन में उनका भी एक सहयोग रहा है। मैं शीतल जी सोलंकी जो मुमुक्षु यहाँ पर मौजूद है, वो ऑल द वे महाराष्ट्र से यहाँ पधारी है और उनका भी श्री संघ की ओर से सम्मान किया गया है। मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और आज मैं मेरे ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जैसा कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बिहार धाम योजना का राष्ट्रीय अध्यक्ष करके फिलहाल मैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस में काम कर रहा हूँ, तो इस पश्चिम बंगाल प्रांत के लिए मैं श्री वीर प्रकाश जी जैन की पश्चिम बंगाल प्रांतीय अध्यक्ष के लिए, बिहार धाम योजना के प्रांतीय अध्यक्ष के लिए नियुक्ति करता हूँ। कृपया वे सामने आए। वीर प्रकाश जी जैन। आनंद जी आप भी खड़े हो जाइए। पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष विपाड़ा जी तो नहीं है शायद यहाँ पे। वैसे ही श्री महामंत्री के रूप में मैं हरीश जी जैन इनकी नियुक्ति करता हूँ। हरीश जी जैन कृपया आप आए। ये पश्चिम बंगाल की बिहार धाम योजना को आगे बढ़ाएंगे और पूरा पश्चिम बंगाल प्रांत के लिए एक विशेष कार्य करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और आपको बहुत बहुत आपके भावी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पुनश्च एक बार महासती जी, चंदा जी महाराज साहब और अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, इनके चरणों में मेरी वंदना प्रस्तुत करता हूं। और संघ ने हमें बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए पुनश्च संघ का भी आभारी रहूंगा, संघ का, और संघ का सम्मान करता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया। हाँ शहर मैं एक बात क्लियरफाई कर दूं, वो खड़े हैं ना शशि भाई, उनको देना। आओ, अरे आओ, ऐसे नहीं चलेगा सर, आओ। राजेश जी भिमानी, अपू भाई खारा, शरद भाई खारा, शरद भाई आज मैं लाभार्थी। लाभार्थी परिवार खड़े ना, ये टोपी वाले भाई, वो ये जैनम जयंती, जैनम जयंती। एक मिनट सभी बोलो बिरादर जोर से जैनम जयंती दानदाताओं को धन्यवाद, मातृश्री वृद्धाश्रम में अनुदान देने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। हाँ सर, जय जय। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। शशि एक मिनट आपकी फैमिली आगे जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। हाँ ऐसे सामने सामने। हाँ वजन शासन देव की जय। दिवाली के बाद मिलेंगे। इस कार्यक्रम के लिए प्रत्यक्ष या अपरोक्ष में किसी ने श्रमदान दिया, किसी ने समय दान दिया, किसी ने धनदान दिया, किसी ने अपना पसीना बहाया, उन्हें धन्यवाद साधुवाद। आए हुए अतिथियों का सम्मान बाकी है, राइट ना दुल भाई? 6 ना यहाँ की परंपरा में स्वागत होता है। तो आइए हम सुनना चाहेंगे प्रवर्तनी मेवाड़ करो डॉक्टर चंदना जी महाराज। उससे पहले क्या साध्वी अक्षता जी, अदिति जी और नव कीर्ति जी का एक गुरुमा की भी गीत सुनेंगे? दिल थाम कर, मुहूर्त आ रहा है, ठीक टाइम पर आपके हाथ में क्या आएगा? कॉइन। दिल थाम कर बैठे रहना, बिना कॉइन लेने जाना ही मत। अदिति जी और अक्षता जी और नव कीर्ति जी पेश है आपके सामने। भैया ये वाला माइक चालू है।
आया, रघुवर में संयम लेकर आत्म शक्ति प्रगटाई, मानव को राह दिखाने तुम दीप ज्योति बन आई। प्रवर्तनी में वर्गों डॉक्टर चन्नाजीमान पेश है आपके सामने। मैं कटोदर पूजक कवि चरित शिवलाल आचार्य उदय श्री चौथमल मोहिन्द्र जी, शास्त्र वेता पाद पंचम पूज्य मन्ना लाल जी, मुझको चंद्र सहस्रमन आनंद काल जी, मंदिर स्वामी बंधु बंधु महावीर स्वामी को, लभिधर गौतम गणी बंधु सुधर मां स्वामी को, पूज्य गुरुवर जय दिवाकर चौथमल चरणे नमो, वासिसा कर कमला गुरमी कोटिशः वंदन करूं, कोटिशः वंदन करूं। जगजीवंत पुनीत जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन, पूज्य श्री डूंगर सिंह जी महाराज साहब के चरणों में वंदन, उपस्थित धर्म सभा में आए हुए सभी भक्तगण, मेरे सामने समय अपनी गति से बढ़ गया है, 12 बज चुकी है और अभी किसके बारे में बोलूं? आचार्य आत्माराम जी महाराज, जहां पर पंजाब के प्रांत से जिन्होंने जन्म लिया और श्रमण संघ के प्रथम आचार्य बने। श्रमण संघ जब बना है, हमारे संतों की, हमारे श्रावकों की बहुत बड़ी भूमिका है उसमें रही है और 22 संप्रदाय को, अलग अलग प्रांत की जो संप्रदाय थी, सभी को मिलाकर एक संगठन और सभी के आचार्य पद का त्याग कर एक आचार्य की नियुक्ति हुई। पूरी 22 संप्रदाय मिलकर वह बना श्रमण संघ, जो पूरे भारत में फैला हुआ है। ऐसे उस श्रमण संघ के प्रथम आचार्य पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, जिन्होंने इस श्रमण संघ के लिए बहुत कुछ किया है। 19 शास्त्र जो हमारे आगम है, आचरण आदि विभिन्न आगमों पर उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, जो आज हमारे लिए बहुत उपयोगी बन रहा है। और इस तरह से उन्होंने उसकी हिंदी में टीका की है कि जिसको सहज मन में एक प्रश्न उभरते हैं, उन प्रश्नों का शंका समाधान अनायास रूप से मिल जाता है। ऐसे महामहिम आचार्य प्रवर्ती आत्माराम जी महाराज, जिनके पंजाब में जन्म लिया है और पंजाब ही उनका निर्वाण हुआ है, उन महामहिम आचार्य श्री के चरणों में मेरा भावपूर्वक वंदन। दूसरे आचार्य श्री जो वर्तमान में अभी सूरत में विराजित है, आचार्य शिवमुनि जी महाराज, जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में इस संयम के मार्ग पर आरोहण किया। विदेश में जाकर घूमना फिरना सब कुछ परिवार ने कराया, लेकिन फिर भी वैराग्य भाव इतना दृढ़ रहा। पीएचडी करने के बाद उन्होंने यह संयम जीवन स्वीकार किया और आज जिनका विशेष लक्ष्य ध्यान के प्रति है, तो ध्यान योगी कहलाते हैं और जो निरंतर तप साधना में करीब 40-45 वर्ष से वह एकांतर वर्षी तप करते चले आ रहे हैं। ऐसे महान
आचार्य श्री शिवमुनि जी महाराज के चरणों में मैं वंदन करती हूँ और उनके दीर्घ और यशस्वी जीवन के लिए बहुत बहुत प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वह हर समय इसी तरह आगे बढ़ते रहें और इस श्रवण संघ का जो शासन वो कर रहे हैं वो उसी तरह करते रहें। तीसरा नंबर आया मेरी गुरुवर्या मालव सेनी कमलावती जी महाराज, जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, जिनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जितना बोलूं उतना कम है। ऐसे महान गुरुवर्या कि जिसने मैं 10 वर्ष की नन्ही उम्र में उस गुरुवर्या के चरणों में आई हूँ और अक्षय ज्योति जी 5 साल की उम्र में उन गुरुवर्या के चरणों में आए। आज हम जो कुछ बने हैं उन्हीं गुरुवर्या का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है कि उनके आशीर्वाद से हम इतने आगे बढ़े हैं। और मैं कह दूं, जहाँ अभी बता रहे 36 साथियां हैं, लेकिन 7 साथियां उनकी शिष्याओं का स्वर्गवास हो चुका है और 36 वर्तमान में है। और साथ ही अभी 2 मुमुक्षु बहनें, एक की 16 जनवरी को दीक्षा होने वाली है और एक को 22 फरवरी की दीक्षा। इस प्रकार उनका ये ग्रुप जो बढ़ रहा है ये सब उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की कृपा है। उनके ऐसे संस्कार उनकी माताजी ने उनको दिए थे, क्योंकि उनकी माताजी भी दीक्षा ली थी और श्रद्धे तपस्वी लाभचंद जी महाराज ने भी उन्हीं के साथ दीक्षा ली है। ये सब एक साथ 4 दीक्षाएं हुई थी। तो ऐसे महान तपस्वी और साधक उनकी माताजी ने 57 बीज का संखारा किया था। ऐसी भीषण गर्मी में जब होली के समय में उन्होंने संखारा शुरू किया और वैशाख की अमावस्या के दिन उनका संखारा पूर्ण हुआ था। ऐसी महान साध्वी उन्हीं की सुपुत्री साध्वी श्री कमलावती जी महाराज थे कि जिन्होंने हम सब शिष्याओं को इतना प्रेरित किया है कि संयम के प्रति दृढ़ रहना, चाहे कैसी भी परिस्थितियां है, अपने संयम के पद से विचलित मत होना। और यही संस्कार उनके हमें काम आ रहे हैं। उनकी जो दी हुई शिक्षाएं हैं वो हमारे लिए स्थापी है और उसी पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि समय नहीं है मैं किसके बारे में बोलूं, क्योंकि 12 बज चुकी है। मुमुक्षु शीतल बहन जो बहुत संघर्ष किया है, जिसने अपने जीवन में इस दीक्षा पाने के लिए लगभग 10-12 साल से वो परेशान हो रही थी। सिर्फ श्वेत वस्त्र पहन के रहती थी कि मुझे रंगीन दंडित पहनना ही नहीं है, मुझे दीक्षा की आज्ञा मिले। पिताजी की एकलौती बेटी है, इसीलिए पिताजी आज्ञा देने को तैयार नहीं, परिवार आज्ञा नहीं दे रहा था। छोटे भाई की शादी भी हो गई, तब भी ये सफेद वस्त्र में रही। इसी वैराग्य के कारण आखिर अंत में संसारी प्राणियों को हारना पड़ा और इसका वैराग्य ने विजय पाई और अब इसे आज्ञा मिली है। अभी 4 जून को इसे आज्ञा पत्र मंजूर हुआ है और इस 22 फरवरी को इसकी दीक्षा होगी। तो मैं मुमुक्षु आत्मा को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि हमारे अपने कमला ग्रुप का नाम इसी तरह आगे बढ़ा है। और कामाणी जैन संघ, जिनके बारे में क्या कहूँ, वैसे तो पूरा कलकत्ता संघ को ही कह दूं कि बहुत बहुत जिन्होंने सेवाएं की है और साथ ही कलकत्ता कामाणी जैन संघ ने जिन्होंने तो इतनी अपूर्व सेवा की है, क्योंकि इतना लंबा रास्ता पार करके आना, अगर इनकी भक्ति न होती तो हम नहीं पहुंच सकते थे। ये धीरज मुनि जी महाराज का आशीर्वाद और अरुण मुनि जी की प्रेरणा की जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज उन सभी का दिल से आभार स्वीकार करती हूँ और आप श्री संघ इसी तरह हर कदम पे आगे बढ़ते रहो, यही शुभकामना करती हूँ। आपने जो तन मन और धन से जो सहयोग किया है, जो सेवाएं की है, निरंतर इसी तरह आपका संघ आगे बढ़ता रहे, यही मंगल कामना करती हूँ। आए सभी अतिथिगण जो भी महाराष्ट्र से अधिक संख्या में पहुंचे हैं, उन सब का आग्रह बहुत ज्यादा है, क्योंकि जन्म हमने राजस्थान में लिया है, प्रवर्तनी पद मध्य प्रदेश का है, लेकिन हमारी कर्मभूमि महाराष्ट्र रही है। बॉम्बे, पूना, नासिक यही हमारा ज्यादा सक्रिय हो गया है। तो उन सबका प्रेम हमारे भाई की तरह है, हमारे पिता की तरह है, उन सबका प्रेम इसी तरह बना रहे। और मैं कलकत्ता श्री संघ से भी कहना चाहूंगी, आप भी हमारे अपने हैं, आप इसी तरह हमसे जुड़ कर रहें, ताकि हम में ये भेद निकल जाए कि हम गुजराती और मारवाड़ी अलग हैं। हम सब एक हैं, एक रहेंगे। बस इतना ही कहकर विश्राम लूं। बोल भगवान नमः। श्री कामाणी जैन भवन की ओर से इस जन्म जयंती के अवसर पर पधारे कोलकाता के सभी संघों के पद अधिकारी और सदस्य, मुमुक्षु कुमारी शीतल सोलंकी, सभी आदरणीय अतिथिगण, दाता, बहनों और भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ।
मैं विशेष रूप से सभी आप बाहर से पधारे हुए अतिथि गणों का आभारी हूँ जो इस अवसर के लिए कोलकाता पधारे और हमें सेवा का अवसर दिया है। आपकी उपस्थिति ने इस अनुष्ठान को 4 चांद लगा दिया और इस अवसर को यादगार बना दिया। यही आपसे सेवा में, यदि आपकी सेवा में कोई भी कमी नहीं हो तो हम क्षमा चाहते हैं। यह आयोजन आप सभी के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। मैं विशेष रूप से श्री मनीष भाई दोषी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस आयोजन में सहयोग दिया है। साथ में जैन जागृति और जग जैन ग्रुप यूथ विंग के सभी सदस्यों का मैं आभार है जिन्होंने तन मन से सेवा करके इस आयोजन को सफल बनाया है। आप सभी का स्नेह, सहयोग ही हमारे सबकी बड़ी ताकत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बिच्छामी डुबडू। आंखें कोमलता से बंद रखें, राइट हैंड ऊपर रखें, अपनी जो भी विषय को बोले। अगर आप लोगों ने मंत्र संकल्प नहीं लिया तो आपका जाप अधूरा रहेगा। जाने वालों, ओ जाने वालों, आएंगे। अपनी विश सोचे, अपना संकल्प ले। पावन दीना
दुह सम्मते लब्धे चिंतामणि कपपाय भवैये पावन्ति अविघ्नं जीवार्यामरं प्राणं किया सन्तु महायस भक्तिवरनि वरेण हियेन तादेव निजमोहि भवे भवे पासजिन चण्ड तादेव निजमोहि भवे भवे पासजिन चण्ड। बोलिए पशुनाथ भगवान की। आज का 1.25 करोड़ जप अनुष्ठान में आप सभी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास के साथ आए बैठे, जिन्होंने प्रभावना का लाभ लिया, जिन्होंने कलश का लाभ लिया और जिन्होंने सिक्कों का लाभ लिया, सभी को फिर एक बार मंच की ओर से धन्यवाद। यह सिक्का आप 8 दिन तक लगातार इस पर ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमिनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः का जप करें। प्लास्टिक का कवर निकाल दे, येलो कपड़े के अंदर इसे लपेट लें, गांठ न लगाएं, कुछ भी धागा न बांधे और जो आपका लोकर है, जहां आप पैसा रखते हैं या आपका अपना वॉलेट है या आपका अपना पर्स है, आप उसमें रख सकते हैं। परमात्मा से, जिन शासन देव से हम यही कामना करते हैं कि आपकी दुनिया लक्ष्मी बढ़े और निरंतर आप धर्म, सेवा और भक्ति इसी तरह करते रहे। और कुछ अतुल भाई अभी आपने प्रवर्तनी विभाग और डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब से सभी का ध्यान मेरी ओर हो जाए प्लीज। 1 मिनट आप बांटो। अरे दिशु को तो मैं दे दूंगी। मैं कहना चाहूंगी अभी आत्मानंद जी महाराज, डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज और तीसरा जन्मदिन किसका मनाया आपने? थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ। कमलावती जी महाराज। तो ज्यादा तक कुछ बोलने का मूड नहीं है, क्योंकि आपको सिक्का मिल गया है, पप्पू भाई की ओर से चॉकलेट मिल गई है और संघ वालों की ओर से। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी आचार्य शिवमुनि जी के लिए, आत्मा आनंद के भंडार की चाबी तुम्हारे हाथ है, आत्मा आनंद के भंडार की चाबी तुम्हारे हाथ है। देवेंद्र का साधना बल तुम्हारे साथ है, देवेंद्र का साधना बल तुम्हारे साथ है। आचार्य शिवमुनि जी, आचार्य शिवमुनि जी तुम साधना में आगे बढ़ो, आचार्य शिवमुनि जी तुम साधना में आगे बढ़ो। ये संघ तुम्हारे साथ है, ये संघ तुम्हारे साथ है। आचार्य शिवमुनि जी को जन्मदिन के अवसर पर हम यही शुभकामना देते हैं। तुम हमारे हो, हम सदा ही तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, हम सदा ही तुम्हारे हैं। भावनाओं के सुमन सब आज वारे हैं, कह रहा है दिल का यही कण-कण, कह रहा है दिल का यही कण-कण। तुम जीवो इतने बरस, तुम जीवो इतने बरस, जितने की नभ में सितारे हैं, जितने की नभ में सितारे हैं। आचार्य शिवमुनि जी अपनी शतायु दीर्घायु हो और उनकी सेंचुरी हम मनाएं, बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और गुरु माँ के लिए इतना ही कहना चाहूंगी, आने वाली ये नस्लें जिसका होने का अंदाज करेगी, आने वाली ये नस्लें जिसके होने का अंदाज करेगी, वह शख्स ऐसा निराला था, वह शख्स ऐसा निराला था। सदियां जिस पर नाच करेगी, सदियां जिस पर नाच करेगी, वह ऐसी निराली साथी थी जो शताब्दियों के बाद आती है, हम उन्हें भुला नहीं पाएंगे। बाहर से जो भक्तगण आए हैं उनको एक बात कहना चाहूंगी, कलकत्ता वालों की, कलकत्ता में जो प्रतिक्रमण याद करता है और जो प्रतिक्रमण पूरा करता है उसे 1,25,000 का कैश पुरस्कार मिलता है। 1,25,000 और अभी तक यहाँ पर कितने हैं? 40 बच्चे कि 30 बच्चे? हाँ 40 25 बच्चे प्रतिक्रमण कर रहे हैं और अभी प्रशिक्षण के बाद करीब 30 बच्चों ने सामायिक सूत्र याद किया। उन्हें गामाड़ी जैन संघ की ओर से 2500 रुपया पुरस्कार और शरद भाई खारा परिवार की ओर से
सुना आपने कभी? ये है कलकत्ता। तो ऐसी बातें जब देखते हैं तो जैसे आज मोदी जी आए हैं, उनका सीना 56 इंच का है, तो कलकत्ता वालों की बात करूं तो मेरा सीना भी कितना होता है? 56 इंच। राइट।